ठीक है, आप लोग ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट देखें। Monotone sequence of real numbers is convergent if and only if it is bounded. So this one is monotone convergence theorem, that a monotone sequence of real numbers is convergent if and only if it is bounded. So or in general we can say that if your sequence is monotone, I mean either increasing or decreasing, and apart from this it is bounded also, then those type of sequences are always convergent. So suppose xn is a bounded increasing sequence, the limit of xn is equal to supremum of xn for n belonging to n, the natural number. And if yn is a bounded decreasing sequence, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Then if yn is a bounded decreasing sequence, then limit of sequence yn is basically what is infimum of yn. So a bounded decreasing sequence, its limit will be its infimum, and if sequence is your increasing and bounded above, then its limit will be your supremum. चलिए आप लोग ये प्रूफ पढ़ें इसे और समझने की कोशिश करें। और जिसको समझ में आ जाए वो एक्सप्लेन करें। देखिए आप लोगों ने पीछे कितनी चीजें रिवाइज की है, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं, सुप्रीमम, इनफीमम और कन्वर्जेंस, वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, पीछे मैंने सब बता दिया। प्रूफ लिखा हुआ है, इसे पढ़ के मुझे स्टेप एक्सप्लेन करें। मैं आपको 3 मिनट टाइम देता हूँ, पढ़ें, उसके बाद। हेलो सर। हाँ बताएं। सर इसमें हमें पहले 2 पार्ट प्रूव करना है कि इफ x इज इक्वल टू xn इज अ बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देन लिमिट xn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं सर कि मान लेते हैं सुप्रीमम ऑफ xn कोई x स्टार है, तो हमें प्रूव करना है मॉड xn माइनस x स्टार इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ताकि वो कन्वर्जेंट हो जाए उस x स्टार पे। there exists k such that for all n greater than equal to k, xn minus x star mod xn minus x star is less than epsilon। ये हमें प्रूव करना है। ठीक। तो सर सबसे पहले हमें दे रखा है कि xn is bounded increasing sequence। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ध्यान देंगे कि xn is bounded, so this means for all n belongs to n, mod xn is less than equal to m। तो सर हम ये पता है कि बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है, तो इसलिए mod xn is less than equal to m, there exists a real number m such that bounded above as well as bounded below। yes sir, तो bounded above है इसलिए for there exists a real number m such that every member of the sequence is less than equal to m for all n, for all n xn is less than equal to m। then we know that if a set is bounded above, then there exists a least upper bound। so वो प्रॉपर्टी था LUV प्रॉपर्टी। इस तरह नहीं कहेंगे, देखो ये जो सीक्वेंस है ना, ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। so sequence of real number is basically subset of R, and we know that from completeness property of real number that every bounded subset of R has infimum as well as supremum। हाँ सुप्रीमम। तो आप यहाँ पे ये बाउंडेड सबसेट है और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो उसकी वजह से हम क्लेम करेंगे कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। यस सर, देन हो गया तो सुप्रीमम। देखो जो पीछे जो रिजल्ट्स यूज किए हैं वो यूज हो रहे हैं यहाँ पे। इसी वजह से आपको याद होगा कि स्टार्टिंग क्लास में ही मैंने आपको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, जो सुप्रीमम इन्फीमम क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें यही वजह थी कराने, क्योंकि हर एक प्रूफ में वो बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, आगे बताएं। देन फिर हम उस सुप्रीमम को x स्टार मान लेंगे, x स्टार इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn, देन इट एग्जिस्ट इन R, ये हमें पता है। अब हमें ये प्रूव करना है कि x स्टार इज इक्वल टू लिमिट xn। सो हम एक एप्सिलॉन वी से दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज गिवन। सो हमें पता है कि x स्टार इज द लीस्ट अपर बाउंड और द सुप्रीमम, then this means suppose that any x upper star is the least upper bound of supremum of xn।
Yes, sir. Suppose x star is the supremum, then for all epsilon greater than 0, x minus epsilon will not be an upper bound. X star So, minus epsilon will not be upper, because see, this supremum is again going to be a real number. Yes, sir. So therefore, yes, yes, if sir. you subtract any real number epsilon greater than 0 from x star, then obviously it will not be an upper bound, because supremum by definition is always the least among all upper bound. Least upper bound. So Yes, just sir. so this means there exists some member from the set set such that it is which greater exceeds than x star minus very good. epsilon. So suppose for k, suppose xk is such a member which exceeds x star minus epsilon. X star minus epsilon, and it will be less than x star also. But yes, we also know that due to increasing sequence. xn is an increasing sequence. So this means every member for all n greater than equal to k, xk will be less than equal to xn. So you can write this step that xn is greater than equal to x And using, equal to because a. it's already given that our sequence is increasing Increasing and bounded. Two things we have. So from bounded we have we have applied completeness property of R for claim of supremum, and using increasing we can develop this one. Yes, sir. Then we get this is what equivalent of writing this. Yes, sir. We get this inequality, and from there we can say that xn for all n greater than equal to k, xn is greater than x star minus epsilon and less than x star plus epsilon. So this means xn minus x star mod of xn minus x star is less than epsilon for all n greater than. Or in fact, one can say that this implies that for all n greater than equal to k, the members of the sequence xn gets enclosed in the neighborhood of epsilon neighborhood of x star. Very good. That is what equivalent to saying that xn will converge to the limit x star, which is supremum of sequence. तो देखो ये अक्सर ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन बैठोगे तो सीक्वेंस देके और बाउंडेड अगर एबव है तो पूछते हैं कि इसकी लिमिट क्या होगी. So limit is simply in that case limit is its supremum, so you can easily find its supremum. And if your sequence is bounded and decreasing and bounded, then simply find its infimum, that is limit of the sequence. ठीक है. तो ये अब एक प्रूफ करा दिया, सेकंड उसी तरह आप कर लेंगे. दूसरा है सुप्रीमम इन्फिमम की प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, तो ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम सीक्वेंस के लिए. तो चलिए सेकंड खुद से कर लेंगे. मैं एक क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करना चाहता था कि आप लोग ने डेफिनेशन को क्लियर किया है कि नहीं. अच्छा, ये देखो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और मैं अभी आता हूँ इस पे. इससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है. ये सब सारे क्वेश्चन है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पे. या तो दिखा देंगे बाउंडेड है और डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो है या इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव है. सो दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस विल कन्वर्ज and to find its limit. So here you can. अच्छा, पहले थोड़ा सा थ्योरी और कवर कर लेते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पे. 6 है, 7 है, 5, 4, all 1 to 7, all these are based on monotone convergence theorem. So we will do combinedly all these questions. अब आप लोग जो है ना देखो, ये सब सीक्वेंसेस हमने बता दिया था आपको. नोटेशन आप अगर स्टार्टिंग में देखो तो सब सीक्वेंस आपको बता दिया था. सपोज xn be a sequence of real numbers and n1 is less than n2 is less than, I mean nk be an strictly increasing sequence of natural numbers, then the subsequence xnk, I mean you need to choose this subscript from, see, the domain of sequence xn is a natural number. We know that xn is a mapping from n to r. So from these indices, choose indices, but it should be strictly in, remember for subsequences the domain should be in strictly increasing sequence of natural numbers. So that is called, for example, suppose this is the sequence x is equal to 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3 and so on, and whether this is subsequence or not. So you can see that the second, this one is the second member x2, 1 by 2 is the second member of the sequence, 1 by 4 is the fourth member of the sequence, x2, x4, x6, x2k and so on. And now you check indices, whether its indices are
in strictly increasing order or not. That is enough for the claim of subsequence. समझ में आ गया? यस सर। सिंपली ये देखना है कि जो उसके हम सब सीक्वेंसेस की जो इंडिसेस देख रहे हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है। अगर वो नहीं है, जैसे अगर मैं ये लिख देता, पहला सीक्वेंस पहला मेंबर लेता 1/6, फिर 1/4, फिर 1/8 ऐसे लिखता, तो दिस इज नॉट अ सब सीक्वेंस, क्योंकि ये सीक्वेंस का 6th मेंबर था, फिर ये 4 आ गया, फिर ये 8 आ गया। तो देखो ये इंडिसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सब सीक्वेंस। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया सब सीक्वेंस। बाकी चीजें लिखी हुई आप खुद से पढ़ लेंगे, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आप 3.42 आप एज अ होम असाइनमेंट मैंने दे दिया, ये बीच के जो थ्योरम्स हैं ये खुद से आप लोग कर लेंगे। हाँ, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया एक तो मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इन द टर्म्स ऑफ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, एक वो भी होता है डेफिनेशन, ठीक है ना, उसके टर्म में भी। लेकिन वहां पे भी उससे पहुंचने से पहले आपको एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, बोल्जानो-स्ट्रासेस थ्योरम, वो करना है, और कॉशी क्राइटेरिया, ये दोनों करने के बाद हम वहां पहुंचेंगे। तो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया में देखो क्या लिखा हुआ है। If a sequence x equal to xn of real numbers has either of the following properties, then sequence is said to be divergent. If sequence has two convergent subsequences, say xnk and xrk, whose limits are not equal, just like we have seen in the case -1 to the power n. So it has two subsequence, one of you can construct two subsequence from here, in fact complementary subsequence from here, and you can check that this say x1, x2, x3, x4 and so on. Actually your sequence first member will be -1 for this, second member will be 1, then third will be -1, 1 and so on. So from here I can choose this sequence x1 subsequence x1, x3, x1, x3, x5 and so on. That is -1 subsequence of -1, and you can check here that the indices are strictly in increasing order, so this is going to form a subsequence. And similarly this subsequence x2, x4, x6 and so on. So you can check here that, so this sequence -1, this will being a constant, it will converge to -1 and it will converge to 1. So both subsequences are convergent, but they are converging to different limits. So as per claim, if such things happen that there is any sequence in which subsequences are converging to different limits, then those type of sequence are said to be divergent. आगे समझ में? In fact, we will use that if a sequence is convergent, then whatever subsequence you will choose, it is going to converge to the same limit. And second, or if x is unbounded. So if there is a sequence which is unbounded, then obviously that is also going to be not be convergent. आपको वो रिजल्ट करवाया था, कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड, इससे पहले मैंने प्रूफ कराया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाइज बाउंडेड. सो निगेशन ऑफ बाउंडेड, unbounded implies non-convergent. negation of bounded implies not convergent. Not convergent. Okay. So in I mean we can also interpret our definition of divergent in this form, है ना. ये भी आपको हेल्प करेगा पहचानने में कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. तो आप देख लो, अगर उसके पास सब सीक्वेंस है जिनकी लिमिट डिफरेंट है, तो ये डिस्कार्ड करने में काम आता है. अभी आपको जब मैं वो सीक्वेंशियल अप्रोच बताऊंगा, अभी एक और अप्रोच है वो सीक्वेंशियल अप्रोच. जैसे कैसे क्लेम करेंगे कि sin 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती 0 पे, या cos 1/x की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती व्हेन एक्सटेंडिंग टू 0 sin. सो आपने +2 में किया होगा, एक तो सीरीज एक्सपेंशन से, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ग्राफ से. एक सीक्वेंशियल अप्रोच होगा, उससे बताऊंगा मैं आगे, कुछ कंबाइंड जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां बताऊंगा. तो आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल में, ये देखो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है कि नहीं. एग्जांपल बी. एक्चुअली दो पहले किसी एक बुक को कंप्लीटली फॉलो करो, जो पैटर्न दे रखा है उसमें ना, फिर बीच बीच में जो एक्स्ट्रा चीज होगी मैं बता दूंगा. लेकिन जब किताब को रीड करते हैं तो उसका एक लाइन कोशिश करें कि कंप्लीट करना उस बुक को. सो सीक्वेंस 1, 1/2, 3, 1/4 इज डाइवर्जेंट.
Why? Because this sequence is not bounded, is it? क्या ये sequence bounded है? No, sir. So how to claim that this sequence is not bounded? Give me any real number. I can claim a member from this sequence which will exceed that real number. कोई भी मुझे एक real number बताए, ये तो होता है अनबाउंडेड शो करने का तरीका. मान लो जैसे आपने मुझे m का वैल्यू 10 दिया, so can I produce a real a member of from this sequence which exceeds 10? देखो इसका थर्ड एलिमेंट क्या है, x3. थर्ड एलिमेंट जो सीक्वेंस का है वो 3 है. इसका कोई 11 12th एलिमेंट x11 clearly x11 exceeds this m. So in this way, you give me any real number, I will claim at least one n from this which exceeds that real number. So in this way, this sequence is not bounded. I can say that y is not, and from this result, that not bounded implies not convergent. Bolzano-Weierstrass theorem देखो. This theorem is for existence of limit. Actually, this theorem tells about existence of limit point. Existence of limit point. I mean, under what condition every sequence has at least one limit point for existence of limit point. मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. तो ये जो थ्योरम है BWT, this theorem is basically condition for existence of limit point of a sequence. So according to this, a bounded sequence of real number has at least one limit point. A bounded sequence of real numbers has at least one limit point. अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट है. बाउंडेड नहीं है तो भी हो सकते हैं उसके पास लिमिट पॉइंट, लेकिन गारंटी नहीं है. मतलब आई मीन हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन अगर सीक्वेंस अगर आपका बाउंडेड है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होना ही होना है. हो सकता है एक से ज्यादा हो, लेकिन कम से कम एक लिमिट पॉइंट होना अगर सीक्वेंस बाउंडेड है. अच्छा, सीक्वेंस का डोमेन क्योंकि नेचुरल नंबर होता है तो सीक्वेंस में मेंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं. सेट में आप जब जाओगे ना तो पढ़ोगे वहां एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट. तो इसका प्रूफ में जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली हम मोनोटोन, पहले आप लोग एक बार रीड कर लें इसके प्रूफ को, उसके बाद मैं क्लेम करता हूं कैसे कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे और ये कैसे क्लेम करेंगे. कम से कम इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा. आपके पास सिर्फ इतना कंडीशन दे रखा है कि आपका सीक्वेंस बाउंडेड है, तो इसको यूज करके ये मैं कैसे क्लेम करूंगा कि इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है या कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. क्योंकि देखो जैसे xn इक्वल टू -1 टू द पावर n था ना, xn इक्वल टू -1 टू द पावर n, तो हमने इसके दो लिमिट पॉइंट आए थे -1 और 1. तो अगर आप सब सीक्वेंस बनाओ ऑड और इवन टर्म्स की, तो एक 1 वाला सीक्वेंस था जो 1 को कन्वर्ज कर रहा था और एक -1. तो ये इक्विवेलेंट है सेइंग कि दैट if a bounded sequence of real number has a convergent subsequence, तो जो convergent subsequence means has at least one limit. जैसे इस केस में दो लिमिट पॉइंट है, so has a convergent subsequence means has at least one limit point, not limit. Limit is always a limit point. तो मैं आपको 3 मिनट देता हूं, पहले आप ये एक बार प्रूफ को रीड कर लें, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. देखो इसको प्रूफ करने से पहले आपको थ्योरम 2.5.3 जो फाइनाइट इंटरसेक्शन थ्योरम, सॉरी नेस्टेड प्रॉपर्टी इंटरवल है, पहले मैं वो रिकॉल करा दूं तब समझ में आएगी चीजें. एक तो देखो नेस्टेड इंटरवल लेमा अप्लाई करना है इस प्रूफ में, और फिर मैं आपको आइडिया दे देता हूं ये नेस्टेड इंटरवल लेमा क्या है और कैसे से अप्लाई करेंगे. So nested interval lemma says that if I1, I2, Ik are closed subsets nested in one another. I mean, I2 is nested in I1, I3 is nested into I2, I mean contained into I2 and so on. Then their intersection will have at least one element. ठीक ना. तो थ्योरम 5 पॉइंट, तो वहां एक क्लोज चाहिए. थ्योरम 2.5.3 का पहले आप स्टेटमेंट देखिए. थ्योरम 2.5.3 नेस्टेड इंटरवल लेमा.
कितना था 2.5.3 ना, बुक में स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है। अगर मैं किताब की पढ़ने की आदत डाला करेंगे वो सही रहता है। 2.5.3, हाँ देखो 2.5.3। अच्छा इसका ना मैंने टोटल प्रूफ जो है वो लास्ट ईयर यूट्यूब पे वीडियो उसमें जाके देख लेंगे, उसमें मैंने इसको डिटेल में समझाया भी है। यहाँ सिर्फ मैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ उसके प्रूफ के लिए, ठीक है ना, टाइम शॉर्टेज की वजह से। तो ये क्या कहता है कि सपोज आई एन इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, आई एन is a closed interval of this type a and bn, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो सबसे पहले जो आपको इंटरवल्स बनाने वो क्लोज्ड होने चाहिए और बाउंडेड होने चाहिए, और उनका लेंथ जो है ना वो जीरो को जाना चाहिए। लेंथ ये bn माइनस एन, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 2 इसका इस इंटरवल का लेंथ क्या, तो आप कहोगे 1 यूनिट, 2 माइनस 1। जैसे मान ले 1 से लेके 4 कहा जाए इसका इसका लेंथ कितना, तो आप कहोगे 3 यूनिट, 4 माइनस 1 3। तो लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है तो क्या करेंगे, bn माइनस an। ऑब्वियसली क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो bn राइट में होगा और an लेफ्ट में होगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लगा हुआ है। तो अगर ये लेंथ ऑफ इंटरवल इसका इन्फीमम अगर जीरो जा रहा हो, एक तो जो आपका सीक्वेंस होना चाहिए ये a1 b1, देखो a2 b2 जो है, a2 b2 आपका कंटेंट होना चाहिए a1 b1 में। a1 b1 में कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन करें कि a1 b1 में कंटेंट हो, फिर a3 b3 जो है, ये a3 b3 जो है वो a2 b2 में कंटेंट होना चाहिए। तो एक तो नेस्टिंग हो किसकी, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल की। तो ये नेस्टिंग एक के अंदर एक कंटेंट है। और अगर इनका इन्फीमम जीरो जा रहा होगा तो इनके इंटरसेक्शन में ये जितने आईएन है ना, ये जितने इंटरवल, इन सब के इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली एक पॉइंट कॉमन होगा, एग्जैक्टली एक पॉइंट कॉमन होगा। तो प्रूफ मैं स्किप कर देता हूँ, प्रूफ इसका आसान है, मैंने ऑलरेडी वो यूट्यूब अकाउंट में जाके देख लेंगे, वहां मैंने समझाया। मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट को बोल्जानो-वेस्टासे थ्योरम में प्रूफ करना चाहता हूँ। इसी को कहते हैं नेस्टेड इंटरवल लेमा, बल्कि यहाँ पे है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। इफ आई एन is a nested sequence of closed and bounded intervals, then there exists a real number xi which is common to each of the in, which is common to each of the in। और अगर इन्फीमम जीरो जा रहा हो तो ये जो xi है ना ये यूनिक होगा। देखो फर्क है दोनों में। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी सिर्फ इतना कहता है कि देयर इज अ नेस्टिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल्स, then xi, then there will be at least one real number which is common to all of the ions, all of the ions। And apart from this, if infimum is zero, if length of the interval is tending to zero, then such xi will be unique, such xi will be unique। ये क्लियर हुआ यहाँ से स्टेटमेंट? यस सर। ठीक है ना। अब आते हैं उस प्रूफ पे। प्रूफ बहुत आसान है, बोल्जानो-वेस्टासे थ्योरम, और इंपॉर्टेंट प्रूफ है, लगभग हर एग्जाम में और इसका क्लेम दिया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट प्रूफ है, थ्योरम्स हैं, वो मैं डिस्कस करा देता हूँ, और जो बीच में है वो मैंने कुछ स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद से पढ़ लेंगे और पढ़ के रखें। जहां डाउट का केस होगा एक किसी दिन क्लास में डिस्कस कर दूंगा। पहले जो की थी, क्योंकि हार्डली मेरे पास 15 या 20 डेज है, तो मुझे सब कुछ कवर करना है। तो जितने स्टैंडर्ड थ्योरम्स वगैरह हैं मैं चाह रहा हूँ पहले उनको मैं डिस्कस कर दूं, फिर बच जाता है तो लास्ट में देख लेंगे। तो देखो ये क्या कहता है यहाँ पे, अच्छा ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था क्या, ये थ्योरम अच्छा था, डज नॉट कन्वर्ज का क्या मीनिंग है, चलिए बाद में इसको मैं कर दूंगा, छूट गया लगता है। हाँ तो देखिए बोल्जानो ये वेस्टासे थ्योरम फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, ये क्या कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। तो एक तो थ्योरम का एक तो पहला प्रूफ तो ये है, ये क्या क्लेम करता है कि मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम अगर यूज करें, इफ xn is a bounded sequence then one can always construct a subsequence which is monotone। तो अब जब सीक्वेंस बाउंडेड है, जब आपका सीक्वेंस बाउंडेड दे रखा है और सब सीक्वेंस उन्हीं में से मेंबर्स लेके बनाए जाते हैं, सो सब सीक्वेंस इज आल्सो गोइंग टू बी बाउंडेड। एंड
as per monotone convergence theorem, because we have already constructed a bounded sequence which is monotone plus bounded is always convergent. हमने देखा था ना, monotone plus bounded implies convergent, तो ये जो सब सीक्वेंस है, ये आपका सब सीक्वेंस क्या निकल के आया, बाउंडेड प्लस मोनोटोन. So this implies that your subsequence is going to be convergent. From monotone convergence theorem, it is going to be convergent, and to the real number to which this subsequence will converge, that is basically your limit point. तो पहला प्रूफ तो ये हो गया टेक्निक. सेकंड प्रूफ इसका इंटरेस्टिंग है, और सेकंड प्रूफ कहीं भी एग्जाम में आता है तो आप सेकंड वाले को ही लिखा करें, ये ज्यादा आसान और बेहतर एक्सप्लेनेशन है. देखो इसमें क्या करना है. It's already given that your sequence is bounded. सीक्वेंस बाउंडेड है, तो सीक्वेंस बाउंडेड होने का क्या मतलब हुआ कि ये जो आपके ये x1 x2 ये जो x3 ये सब बाउंडेड है, मतलब इन सब का एक अपर बाउंड मिलेगा से इधर कैपिटल M कर लो, और एक लोअर बाउंड मिलेगा से स्मॉल m. सो आई कैन इनक्लोज all the members of the sequence in a ball of diameter of this interval. xn को इसमें इनक्लोज कर सकते कि नहीं, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n. डाउट तो नहीं किसी को भाई? बाउंडेड दे रखा है ना, सो बाय डेफिनेशन बाउंडेड का क्या मतलब, देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड, अ रियल नंबर such that every member of the sequence is less than equal to m, and the bounded means bounded above as well as bounded below. या आप इसी कैपिटल M को आप b कह दो और स्मॉल m को आप a कह दो. So since your sequence is bounded, so I can enclose this sequence into any interval of finite length, say ab, closed interval ab. क्या वो किसी को डाउट है यहाँ पे इस स्टेप पे पूछने में? किसी को डाउट है? ये तो डेफिनेशन कहता है ना बाउंडेड. जैसे मान लो कि अगर आपको सीक्वेंस, सपोज करो, चलो समझा देता हूं मैं. सपोज करो आपको मैंने कहा कि सीक्वेंस xn इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1/n. इसके मेंबर क्या होंगे? n की वैल्यू 1, क्योंकि सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर होता है, तो x1 कितना आ गया 1, x2 कितना हो गया 1/2, 1/3, 1/4 हाँ, एक्सेट्रा. ये 0 और 1 पे बाउंडेड हो जाए. हाँ, 0-1 क्या आप इसको 0-2 में भी इनक्लोज कर सकते हो, क्या दिक्कत है? मैं नहीं लिख सकता xn इज कंटेंट इनटू 0-2? यस सर, ये लिख सकते हैं आप. इसको -5 से 5 में लिख दो. I can say that if your sequence is bounded, this means I can enclose this sequence into any interval of finite length, Clear हुआ यहाँ पे? So suppose that interval is closed interval AB. क्लोज्ड इंटरवल क्यों लिया? इसके पीछे ये कि मुझे नेस्टेड इंटरवल लेमा अप्लाई करना, और नेस्टेड इंटरवल लेमा में रिक्वायरमेंट है क्लोज्ड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए और नेस्टिंग होनी चाहिए. 3 चीजें रिक्वायरमेंट है वहां पे. ये जो थ्योरम आपका कहाँ था, थ्योरम 2.5.3 नेस्टेड इंटरवल लेमा. तो आप उस नेस्टेड इंटरवल लेमा, तो यहाँ पे अगर आप याद करो तो यहाँ पे हमें क्लोज्ड सबसेट जो चाहिए था, क्लोज चाहिए था, प्लस बाउंडेड था, और साथ में नेस्टिंग थी, मतलब एक के अंदर एक कंटेंट है. ये 3 चीजें. और अगर साथ में इन्फीमम भी लेंथ का 0 हो गया तो वो रियल नंबर जो सारे आईएन में कॉमन होगा वो यूनिक होगा. तो देखते हैं क्या होता है. ठीक है, सो आई हैव इनक्लोज्ड दिस xn into any interval. This implies xn can be enclosed as xn is bounded, so it can be enclosed into any interval of finite length, So suppose members of the sequence are enclosed in a finite interval, say AB, चलो ये ले लिया, ये A हो गया, ये B हो गया. इस AB के अंदर कितने मेंबर्स हैं? इनफाइनाइट. सीक्वेंस के कितने मेंबर हैं? इनफाइनाइट मेंबर्स हैं. अब हम क्या काम करेंगे कि इसका मैं इक्वल पार्टीशन कर रहा हूं a + b/2 पे. मतलब ये जो पहला इंटरवल है ना, इसको मैंने I1 नाम दिया. ये जो पहला इंटरवल था जो टोटल AB था, इस इंटरवल को मैंने I1 नाम दिया, और इसका लेंथ कितना हो गया? I1 का लेंथ हो गया mod of b - a. लेंथ कितना हो गया? b - a. अब मैं इस इंटरवल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं. मान लो a से a + b/2 मिड पॉइंट होगा, ठीक है, या आप इसको कुछ मान लो
ए ले लिया, तो ये इस वाले पार्ट को मैं A1 कह देता हूं और इस वाले पार्ट को मैं A2 B1 कह देता हूं, है ना। A1 इज बेसिकली ऑल दोज members of the sequence which lies in this part I1 dash। एक बार डिवाइड करने के बाद इस वाले इंटरवल को आप I1 डैश कह दो और इस वाले इंटरवल को I1 डबल डैश कह दो। तो वो सीक्वेंस के वो सारे मेंबर्स है ना, आई मीन वो अच्छा उल्टा यहाँ A1 इस तरह, मैं ये कह रहा हूँ I1 dash is basically obviously because members of the sequence are enclosed in the interval AB, so let us divide into two equal halves. So since closed interval AB contains, since member of the sequence are infinite, so closed interval AB is going to contain infinite members. So if you divide it into two equal halves, then at least one part will contain infinite members of the sequence, क्योंकि अगर दोनों finite हो गए तो उनका union finite हो जाएगा, जो कि contradict कर जाएगा। So at least among I1 dash and I1 double dash, at least one of them has to be infinite. Either both will be infinite, both will contain infinite member of sequence, or at least one of them has to be infinite. तो देखो वो कहीं यहाँ लिखा होगा, if A1 is a finite set, then B1 must be infinite. Okay, if A1 is infinite, then B1 can be infinite, can be finite, but both cannot be finite. Both cannot be finite. Otherwise, because a finite set can never contain an infinite set, and sequence is always infinite. ठीक है, अब ये बताओ कि I1 dash का लेंथ कितना हो जाएगा। लेंथ ऑफ I1 डैश हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, ये हो गया B माइनस A बाई 2, और लेंथ ऑफ I2 डैश ये भी हो जाएगा B माइनस A बाई 2 2। तो पहले लेंथ पे जब हमने डिवाइड किया तो ये हो गया I1 डैश और I1 डबल डैश, सॉरी I1 डबल डैश। तो इसी तरह आप डिवीजन करो। अच्छा, इन दोनों में से दो जो भी पार्ट इनफाइनाइट है ना, उस पार्ट को उठाओ और फर्दर दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते चले जाओ। तो ये प्रोसेस आप अगर करोगे तो आप देखो कि I1 डैश जो है, जो सपोज किया कि I1 डैश वाले पार्ट में इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, और अगर दोनों में इनफाइनाइट मेंबर है तो रैंडमली आप किसी एक को ले लो, किसी एक इंटरवल को चूज कर लो। सो क्लियरली I1 डैश इज कंटेन्ड इनटू द I1, ये होगा कि नहीं? I1 डैश का हाफ है ना ये इंटरवल, ये इसमें इंक्लूड होगा। यस सर, हो जाएगा। A2 A प्लस B बाई 2 जो है आपका, ये लेंथ जो है ये कंटेन्ड है इसमें AB में। तो ये नेस्टिंग इसी तरह, जो अब सपोज कि I1 डैश इनफाइनाइट है तो इसको फर्दर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, जो इनफाइनाइट पार्ट है उसमें से सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह इस प्रोसेस हम एक नेस्टिंग हमने बना लिया। ये I2 I1 ये एक नेस्टिंग कर ली, ठीक है ना। वो बाद में इन्होंने I2 डैश को I3 कह दिया है, वो नोटेशन आप पढ़ लेना जो I2 ये। तो जिसमें भी इनफाइनाइट पार्ट्स हैं उसको हम दोबारा डिवाइड करते चले जाएंगे। और kth स्टेप पे देखो, फर्स्ट स्टेप पे जब I1 पहला स्टेप था तो ये लेंथ ऑफ इंटरवल सिंपली B माइनस A था। जब I2 आपने इसको कहा, I1 डैश को इन्होंने I2 कहा है ना कहीं, I1 डैश को, हाँ देखो I1 डबल डैश को इन्होंने I2 कहा है। तो ये जो लेंथ ऑफ इंटरवल I2 है ना, I2 ये कैसे चल रहा है? B माइनस A बाई 2 पे पावर 1। तो यहाँ अगर इंडिसेस में 2 है तो यहाँ 1 है। तो इन जनरल kth पार्टीशन में, जब kth पार्टीशन होगा, जब वेरी गुड, B माइनस A बाई 2 पे पावर K माइनस 1, B माइनस A बाई 2 पे पावर K माइनस 1। तो देखो ये इस तरह जब करेंगे तो ये एक तो नेस्टिंग हो गई एक के अंदर, और सारे के सारे क्लोज्ड इंटरवल्स हैं, बाउंडेड है। तो अब आपको नेस्टेड इंटरवल लेमा आपने अप्लाई कर दिया, तो इन सारे इंटरवल्स में एटलीस्ट एक रियल नंबर होगा, कम से कम एक रियल नंबर होगा जो सब में कॉमन होगा, हर एक रियल नंबर में कॉमन होगा। सपोज दैट रियल नंबर इज जाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, अच्छा ये बस एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूं, जाई, ठीक है। इनफैक्ट दिस जाई विल बी कॉमन टू ईच ऑफ द इंटरवल एंड विल आल्सो बी यूनिक। क्यों यूनिक होगा? क्योंकि देखो ये जो ना इनकी लेंथ देखो ये 0 जा रहा है, जैसे B और A तो फिक्स होगा, तो ये तो फाइनाइट है, और ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर से इसकी इन्फिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस रियल नंबर इज यूनिक, दिस रियल नंबर इज यूनिक। तो आपने सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया, सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया, ये एक्चुअल में ये n जो चूज कर रहे हैं ना, ये सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, which is this subsequence of x converges to xi। एक तो ये तरीका है कि हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते चले गए और ये क्लेम कर दिया कम से कम एक रियल नंबर तो होगा ही होगा,
इनफैक्ट एक नहीं, वो यूनिक होगा। और ये जो पार्टीशन आपने किया, फिर कोई दूसरा पार्टीशन करेंगे तो कुछ उसमें होगा। सो दिस रियल नंबर xn के this subsequence is going to converge to a real number xi, and this xi is limit point. So remember that every you can say that every bounded sequence has at least one limit point. Every bounded sequence has at least one limit point. ठीक है, अभी आप लोग क्लास है, इतना मैं आज रहने देता हूँ। कल मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है।